Good morning, class 12th economics. The chapter which is in progress is features, problem and policies of agriculture. Second last topic of the chapter is gains of green revolution, significant but not sufficient, or limitation of green revolution. No doubt green revolution played a vital role in Indian economy. We became self-sufficient in the food grains, but still there are some lacunas of green revolution. There are some limitations. Due to green revolution, productivity increased, no doubt in it. Wheat production increased a lot, rice production increased a lot. But let us discuss certain limitations of green revolution. Number one is limited crops. Revolutionary rise in output due to green revolution is confined mainly to the production of food grains, wheat and rice. What does it mean? कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ वो ज़्यादातर फूड क्रॉप्स को ही हुआ, व्हीट और राइस। इसका फ़ायदा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स थी लाइक जूट, कॉटन, टी, इन प्रोडक्ट्स पे ग्रीन रिवोल्यूशन को बेनिफिट नहीं मिला। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन राइज नहीं हुआ। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, लिमिटेड क्रॉप्स, बेनिफिट वेंट टू लिमिटेड क्रॉप्स ओनली. Number two, uneven spread. What does it mean, uneven spread? It means the benefit of green revolution reached to few states of India like Punjab, Haryana and Maharashtra and Tamil Nadu. The state like Eastern UP, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, they did not get benefit of green revolution, and today also you can see that these states, even the poverty is much high in these states in comparison of Punjab, Haryana and Maharashtra. तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो पूरे इंडिया में सभी स्टेटों में एक साथ नहीं फैला, कुछ स्टेट्स को इसका बेनिफिट मिला. नेक्स्ट, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन. ग्रीन रिवोल्यूशन का जो बेनिफिट है इट वेंट टू ओनली अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स. What does it mean? It means in India there are large number of farmers who are having small and marginal farmers. Farming means उनके पास ज़मीन बहुत कम है और कुछ ही फार्मर हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है. तो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए HVY सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का केवल वही इस्तेमाल कर सकते थे जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू get the advantage of green revolution, that is limited farming population. Benefit does not reach to all farmers. Due to this green revolution, what did happen dear? Rich farming population, though small in number, happens to own the bulk of farming area. जैसे मैंने अभी बताया, कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास इंडिया की सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है, तो वो ही लोग इसका बेनिफिट उठा सकते थे. इकोनॉमिक डिवाइड. व्हाट डज इट मीन? इकोनॉमिक डिवाइड मीन्स अ गल्फ बिटवीन पुअर एंड रिच फार्मर्स kept on increasing. Thanks to green revolution, the economic divide, the gulf between the rich and poor farmer has substantially rise over time. ये गैप पहले भी था और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ये गैप बढ़ता चला गया. Poverty is widespread and indebtedness is extremely high. जो छोटे किसान हैं वो बेचारे डेब्ट की पोजीशन में दबे हुए थे. लोन वेवर्स आर फ्रीक्वेंटली ऑफर्ड, येट सुसाइड्स अमंग द फार्मर्स आर emerging टू बी अ सीरियस चैलेंज. लोन वेवर्स वर फ्रीक्वेंटली ऑफर्ड मीन्स सरकार जो फार्मर लोन लेते थे उनके लोन को माफ़ भी कर देती थी, बस इस चीज़ से भी जो है किसानों के भी सुसाइड जैसे केसेस रुके नहीं. तो ग्रीन रिवोल्यूशन का फ़ायदा पूरी तरह से हमें नहीं मिला. ब्रीफली, द अचीवमेंट ऑफ agrarian reforms in terms of green revolution is laudable, that is praiseworthy. The gulf between haves and haves not is serious challenge in India, particularly in rural areas. Also a big push of investment needs to be given to Indian agriculture to raise productivity. बेनिफिट तो मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है ग्रीन रिवोल्यूशन का, लेकिन ये जो गल्फ थी, ये खाई थी, गरीबों और अमीरों के बीच ये बढ़ती चली गई. तो यहाँ गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर हाउ टू
reduce this gap between haves and haves nots. Does India need another green revolution? No doubt in India. India needs another green revolution. Without another green revolution, India could not reach a target what India government want. Yes, it is obvious answer. It is an undisputed fact that the grains of green revolution have started shrinking. अब उसका फायदा कम होता जा रहा है. This is particularly true when the gains are viewed in relation to our needs and in relation to what other countries have achieved. अगर आप इंडिया का प्रोडक्शन देखो और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, इनका अगर आप प्रोडक्शन देखो तो इंडिया उनके आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता है. दैट्स वाई इट नीड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया. लेट अस study some point which tells why it is needed. Number one, our productivity standards are extremely low compared to the other countries. राइस, व्हीट को अगर आप चाइना से, यूएस से, ब्रिटेन आदि कंट्री से अगर कंपेयर करते हो तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. आवर फूड ग्रेन स्टॉक्स आर एट अ पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी. हमारे पास फूड ग्रेन के स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं है. मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर. आज भी इंडिया के अंदर किसान जो है वेदर की वजह से सफ़र करते हैं और वेदर कभी भी सर्टेन नहीं रहता है. फार्मर्स कंटिन्यू टू बी एक्सपोज्ड टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. किसानों को मार्केट की अनसर्टेनिटी को भी झेलना पड़ता है. मार्केट में कभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा चली जाती हैं, कभी प्राइसेस बहुत कम चली जाती हैं. तो उसका जैसे अब सब्जियां हैं, जब सब्जी की फसल मार्केट में आती है, जब वेजिटेबल आती है तो सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती हैं और 1-1.5 महीने के प्रोडक्शन के बाद वहीं सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं. तो व्हाट इज़ ऑल दिस अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट. एंड लोन वेवर्स आर बिकमिंग आर रिकरिंग कंपल्सन. और ये जो लोन की माफ़ी है ये इंडिया के अंदर एक कंपल्सन बन गया है कि किसानों को लोन देना भी पड़ेगा और समय समय पर उनका लोन माफ़ भी करना पड़ेगा. तो बाय सीइंग दिस पॉइंट वी कैन से दैट इंडिया इज़ इन नीड ऑफ अनदर ग्रीन रिवोल्यूशन इफ़ इंडिया वांट टू ब्रिंग a significant and drastic improvement in agriculture. Thank you very much.